Good morning, student. Now, in previous video, we already completed exercise 10.4, question number 5 and question number 6. Now we take the last topic of this lesson. ये lesson का हम लोग सबसे last वाला topic देखेंगे और that topic is related with the arc of a circle. क्या है topic का? Arc of circle. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्क ऑफ अ सर्कल समझना एक डिफिकल्ट टास्क है. ओके, नाउ इफ यू कंसीडर हियर दिस इज ऑफ योर सर्कल, ये आपका सर्कल हो गया एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O. नाउ वी ड्रॉ द secant. So line L is the secant of the circle which intersect the circle into distinct point and that points are A and B. Okay, समझ लो अच्छे से. क्या बोला मैंने? आर्क ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या हो गया? आर्क ऑफ अ सर्कल. Secant, we draw the secant, we take one circle, we draw the secant L which intersect the circle in two distinct point, that is A and B. A और B में इंटरसेक्ट कर रहा है कौन? secant इंटरसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब यदि मैं यहां से सीजर चलाता हूं, कैंची से मैं काटता हूं, तो मुझे क्या दिखेगा? सर्कल के दो पार्ट दिखेंगे. पहला पार्ट दिखेगा ये वाला और दूसरा पार्ट दिखेगा ये वाला. ओके, AXB, this is one part and the second part is AYB. Okay, so ये जो पार्ट है AXB, this part is called as an arc of a circle. ये पार्ट को हमने क्या बोला? Arc of a circle. क्या बोलेंगे इस पार्ट को? Arc of a circle. अब इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? See, secant definition, arc of a circle का definition. Secant divide the circle in two parts. Each part with common end point. Explain. I will explain this. Common end point is called arc of circle. Definition अच्छे से समझ लीजिए. क्या बोला है? Secant divide the circle in two parts. तो secant क्या कर रहा है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. Each part, हर एक पार्ट मींस हर एक पार्ट, ये वाला या फिर ये वाला पार्ट विथ कॉमन एंड पॉइंट. अब यहाँ पे दोनों पार्ट में ये जो दोनों एंड पॉइंट है ये कॉमन है. तो पहला है बोलेंगे हम लोग AXB और दूसरा बोलेंगे AYB. देखो A यहां पर भी है, यहां पे भी, यहां पर भी और यहां पे भी है. मींस ये जो आर्क है यहां से लेके यहां तक जो आर्क है उसके दो एंड पॉइंट है, दैट इज A एंड B. और दूसरा जो आर्क है AYB, इसमें भी दो एंड पॉइंट है A एंड B. Therefore this AXB is called as one of the arc and the second arc is AYB. So definition is the secant divide the circle into two parts. Each part is with the common end point is called as the arc of a circle. You have to note this is the definition of arc of a circle. अब यहाँ पे हम लोग ऐसे कितने secant draw कर सकते हैं? Now if I draw here another secant, this is one of the secant, this is of your second secant, this is of your third secant. Got it? So naturally these are the three arcs. This is A, B, C. If I write here X, this is Y and this is of your Z. Okay? तो इन टू पार्ट्स नहीं बोलेंगे तो ज्यादा, एक से ज्यादा भी पार्ट, क्योंकि एक ही secant कंसीडर किया तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. बट हियर वी कंसीडर द थ्री secant, so naturally the circle is divided into different part. So each part with a common end point. जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया A and B are the common end point. So this arc AXB, arc BYC and arc AZC are the arc of a circle. ध्यान में आ गया arc of a circle का डेफिनेशन. अब देखेंगे हम लोग मेजर आर्क और माइनर आर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर माइनर. माइनर मींस छोटा. छोटा आर्क किसको कहेंगे हम लोग? नॉन सेंटर साइड आर्क, जो सेंटर के साइड में नहीं है.
जो सेंटर के साइड में नहीं है, दैट आर्क इज कॉल्ड एज अ माइनर आर्क. सो हियर माइनर आर्क कौन सा है यहां पर? आर्क AXB. माइनर आर्क इज आर्क AXB. तो AXB को इस तरह से लिखा जाता है, आर्क AXB. और मेजर आर्क जो रहेगा, सेंटर साइड आर्क, जिस आर्क में सेंटर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेजर आर्क. तो इसको हम कहेंगे मेजर, MAJOR. मेजर आर्क इज आर्क AYB. समझ में आ गया? Secant divide the circle in two parts. Each part with the common end point is called as arc of a circle. Minor arc means non-center side arc is called as a minor arc, and center side arc is called as a major arc. Now, if I join this O with A and O with B, हमने OA को ज्वाइन किया, मींस OA ड्रॉ किया और OB ड्रॉ किया, तो यहां पे एक एंगल बना, एंगल AOB, जिसका सेंटर है सर्कल का सेंटर, जिसका वर्टेक्स मींस एंगल का वर्टेक्स क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल. दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एंगल. सो व्हाट इज मीन बाय द सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, व्हाट इज मीन बाय द सेंट्रल एंगल? इफ द vertex of the angle, if the vertex of the angle is center of circle, means ऐसा एंगल है जिसका vertex सर्कल का सेंटर है, that angle is called as a central angle. And here we can write as a, if the vertex of the angle is the center of the circle, is called central angle. Central angle. और यहां पे जो एंगल है, एंगल AOB is a central angle. Is a central angle. यहां पे कौन सा एंगल सेंट्रल एंगल है? एंगल AOB. इतना समझ गए? अब दूसरा देखेंगे. नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट आर्क. कॉन्ग्रुएंट आर्क हियर. सो कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब, उसके पहले हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ आर्क. कॉन्ग्रुएंट आर्क के पहले देख लेते हैं मेजर, MUSURE, मेजर ऑफ आर्क. ये मेजर ऑफ आर्क क्या होता है? ओके, नाउ यू नो दैट measure of arc, this arc is related with the central angle and this is of your minor arc. इसको क्या कहेंगे? minor arc. अब यही secant यदि सेंटर से जाती, मींस इस तरह से यदि होता, ये secant यदि सेंटर से जाती, तो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है और ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल. ये हमने पहले एक्सप्लेन किया. Okay, if the secant is passing through the center of the circle, then the circle is divided into two equal parts, that is called as a semicircle. Okay, अब semicircle का जो मेजरमेंट रहेगा वो 180 रहेगा. तो यहां पे हमने मेजर ऑफ द आर्क कंसीडर करेंगे. तो ये हो गया आपका माइनर आर्क. सो वी विल राइट हियर measure of minor arc is equals to measure of its central angle. जितना मेजरमेंट सेंट्रल एंगल का रहेगा उतना ही मेजरमेंट माइनर आर्क का रहेगा. मान के चलो ये है आपका 60 डिग्री, तो इसका भी मेजरमेंट 60 डिग्री रहेगा, डिग्री में रहेगा. ओके, मींस measure of the arc is always in the degree, not in the length. ओके, मीटर में नहीं रहेगा, वो रहेगा आपका डिग्री में. So measure of the central angle is equals to measure of the minor arc. Therefore we write is measure of the minor arc is equals to measure of the central angle. जितना central angle रहेगा उतना ही उसके मेजरमेंट का आर्क का मेजरमेंट रहेगा. दूसरा, measure of semi circle is equals to 180 डिग्री. सेमी सर्कल का मेजरमेंट क्या? 180 डिग्री. अब तीसरा आपको पता होना चाहिए, मेजर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. पूरे सर्कल का जो मेजरमेंट रहेगा, एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द सर्कल.
and the angular measurement of the circle is 360 degree. Therefore fourth point लिखेंगे measure of the major arc is equals to 360 minus measure of minor arc. मींस जितना माइनर आर्क रहेगा, मान के चलो ये आपका है 90 डिग्री, ओके, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा 270 डिग्री, मींस 360 माइनस मेजर ऑफ द माइनर आर्क, 360 माइनस 90 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 270. ध्यान में आ गया, इतना समझ में आ गया. अब देखेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट आर्क. कॉन्ग्रुएंट आर्क, if I consider here these arc, the measure of these arc and the measure of these arc, this is of here 120 degree and the measure of this arc is also 120 degree, so naturally we can say that these two arcs are congruent. It means that if the measure of arc AXB is equals to measure of arc BYC, दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब आर्क AXB is congruent to arc BYC. ध्यान में रखना है, समझ में आ गया. यदि दो आर्क का मेजरमेंट इक्वल है तो दोनों आर्क कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क रहेंगे. कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क. इतना सब समझ में आ गया. सबसे पहले देखा हमने सेकेंड ऑफ द arc of a circle. Second, divide the circle in two parts. Each part is called as each part with the common end point is called as arc of a circle. दो आर्क यहाँ पे बताया मैंने, arc AXB and arc AYB. उसके बाद में minor arc, non center side arc is called as a minor arc. Center side arc is called as a major arc. Now what is meant by the central angle? If the vertex of the angle is the center of the circle, then it is called as a central angle. After that, measure of arc. Measure of arc means the arc measure of the minor arc is equals to measure of the central angle. उसके बाद में देखा हमने measure of semicircle is 180 degree, angular measurement of the circle is 360 degree. After that, measure of the major arc is equals to 360 minus measure of the minor arc. Now we can see here the congruent arc. If the measure of two arcs are equal, then they are called as a congruent arc. Now arc addition property, arc addition property या फिर आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल में तीन आर्क बने हुए हैं, ओके. अब यहां पे तीन आर्क में से मैं दो आर्क को कंसीडर कर रहा हूं. नाउ मेजर ऑफ आर्क ABC इज इक्वल्स टू, अब ABC मींस यहां से यहां तक है, तो पहला है आपका AXB, मेजर ऑफ आर्क AXB प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या बोलेंगे BYC. गॉट इट. ध्यान में आ गया, इतना सब समझ में आ गया आपको. ध्यान में आ गया इतना, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल. तो यहां पे पढ़ेंगे हम लोग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल and sector of a circle. Now we can see here sector of a circle. Sector, ये सब definition आपको ध्यान में रखना है. Sector of circle. तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि what is mean by the sector of a circle. Now here we draw one circle. So this is of your circle. अब ये circle proper नहीं आएगा मेरा, आप समझ सकते हो. This is of your circle. And we can draw here two radii, okay, A, B, and this is of your X. This is of your X. Got it? So in previous videos we already discussed about the circular region. So circular region means what? The points which are on the circle and the interior of the circle are called as a circular region. And that circular region is nothing but the area of the circular region is nothing but the area of the circle. Circular region का एरिया, इसका मतलब होता है एरिया, सर्कल का एरिया. अब यहां पे देखेंगे सेक्टर का मतलब क्या है. अब देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है मुझे, दिस पोर्शन is bounded by
these two radii and corresponding minor arc। मींस वो जो पोर्शन दिया है, वो जो रीजन दिया है, वो रीजन कैसा है? रीजन कैसा रीजन बना हुआ है? दो रेडियस और साथ में एक माइनर आर्क। दो रेडियस से बना है और एक माइनर आर्क से बना है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल का एरिया बाउंडेड बाय टू रेडाई, दो रेडाई है यहां पे, दो रेडियस से बना है, एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। तो यहां पे दो सेक्टर्स है, ओके। अब इस सेक्टर को लिखते कैसे? ये माइनर सेक्टर हो गया और ये हो गया मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसको कहेंगे? जिसका एंगल 180 से छोटा है, सेंट्रल एंगल 180 से छोटा रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ माइनर सेक्टर। और जिस सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट 180 से बड़ा रहेगा उसको कहेंगे मेजर सेक्टर। तो यहां पे सेक्टर बना है, सेक्टर OAXB। इसको लिखते कैसे? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कैसे लिखते हैं? सेक्टर, ओके, कैसे लिखते हैं? माइनर सेक्टर O'AXB। ध्यान में रखेंगे, पहले लिखते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसके बाद में डैश आती है और उसके बाद में आर्क आता है AXB, और दूसरा है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये आएगा O'AYB। तो दोनों में फर्क है, आर्क में फर्क है, सेक्टर में फर्क है। आर्क में हमने सिंपल लिखा आर्क AXB, आर्क AYB, मगर सेक्टर में हमने क्या किया? पहले लिया सेंटर ऑफ अ सर्कल, उसके बाद डैश दिया और उसके बाद में आर्क लिया। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में देखेंगे हम लोग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के सेगमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द सेगमेंट? नाउ दिस इज ऑफ योर सर्कल, प्रॉपर नहीं निकला, आप समझ सकते हो। नाउ दिस इज ऑफ योर सेकेंट AB, ओके, सो हियर ऑफ योर X। So this portion is called segment of a circle. So what is mean by the segment of the circle? The area bounded by, area bounded, ये देखो ये एरिया अलग है और ये एरिया अलग है, दोनों एरिया में फर्क है। एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड। किससे बना है? ये देखो ये कॉर्ड दिख रही है और ये दिख रहा है आर्क। ये कॉर्ड और ये आर्क से जो बनता है एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, व्हाट इज मीन बाय द सेक्टर एंड व्हाट इज मीन बाय द सेगमेंट। तो सेगमेंट मींस एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब एक डेफिनेशन और बची है और वो डेफिनेशन मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ताकि यहां पे अपना डेफिनेशन खत्म हो जाए। क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होगा? This is of your circle, okay, this is the center of the circle. Now this is of your A, B, C, and this is of your D. If I join all the vertices this point, so we get here quadrilateral, means a quadrilateral having all the vertices lie on the same circle is called as a cyclic quadrilateral. तो definition क्या बनेंगे? A quadrilateral having all vertices lines on a circle, मीन्स सभी के सभी वर्टाइसेस यदि सर्कल पे है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, यहां पे साइक्लिक ट्रायंगल नहीं बोलते हम लोग,
क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया? इफ ऑल द वर्टाइसेस लाई ऑन द सेम सर्कल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां पे इसका एक थ्योरम भी है जो आपको ध्यान में रखना है। अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मींस अपोजिट जो एंगल होते हैं इसके, कौन से? A and C. So angle A plus angle C is equals to 180. You know that what is meant by the supplementary. And angle B plus angle D is equals to 180 degree. तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखना है। What is meant by the cyclic quadrilateral? What is meant by the sector of the circle? What is meant by the segment of the circle? And you have to write all the definitions in your fair notebook.